Hello and welcome to the channel, guys. I couldn't bring myself to come online and to be sad and to mourn by coming online or going live or something like that. So I didn't have it in me. My conscience didn't really allow me to do it. I'm gonna be honest. I thought about it. Everybody thinks about it. It's an opportunity. When somebody dies, some celebrity dies, there's always an opportunity for so many people to come live or make a video about it as soon as possible. So many people come flocking and watching it. Masses are feeling pain. They want to share their grief, their pain with somebody else, and they come to you to watch that and to participate with you in that mourning. So yeah, true fans were really shocked and surprised to hear what happened. A very sad day in Bollywood. Two big celebrities, passed away in the span of 48 hours, basically. Irfan Khan and then Rishi Kapoor Saab. Big dhachka for everybody, who's familiar with Bollywood and the Indian film industry. So I wanted to do something about it, but I didn't want to do it very soon. I don't want to do it too soon because it sends the wrong signal कि यार अगर आप वाकई में रिस्पेक्ट करते हो ना अपने आर्टिस्ट की, अगर आपको वाकई में प्यार था अपने आर्टिस्ट से जो चला गया इस दुनिया से, तो आप उसको कैश इन करने के चक्कर में नहीं पड़ोगे. तो दिस इज़ द ओनली रीज़न आई डिडंट डू anything for the past 3-4 days. I didn't even make videos because I just wasn't feeling it. I don't know, I was surprised. मैं खुद इतना surprised था कि मुझे इतना ज़्यादा क्यों हिट कर गई है इरफान खान की वफात की. And then I realized कि I've been relating to his roles ever since I was a teenager. यार मैं अपने शुरू के जो यंग डेज थे उस ज़माने से मैं इरफान खान को आइडलाइज कर रहा हूँ, उसकी मूवीज़ देख रहा हूँ, उसकी एक्टिंग को देख के इंस्पिरेशन ले रहा हूँ. तो वो सब बहुत सीक्रेटली मेरे दिमाग में हो रहा था, जो कि मैंने कभी ऑब्वियस नहीं बनाया. बट इट ऑल रियली केम बैक टू मी विद द डे आई रियलाइज कि ही इज़ नो मोर, दैट आई वोंट बी सीइंग एनी ऑफ हिज वर्क एनी मोर. लाइक आगे जाके जो है हमारे पास वो है, अब उसके बाद कुछ नहीं होने वाला और नया इरफान खान के रिलेटेड. सो इट रियली ब्रोक माई हार्ट एंड इट रियली पुश्ड मी इनटू दिस डिप्रेसिव स्टेट के यार, just to think about my old past stories, and it becomes about you at that point. So yeah, but now I want to watch this video. My editor sent me this video. It's called Irfan Khan's memorable roles from Life of Pi to the Lunchbox. So let's go and check out Irfan Khan's memorable roles. मेरी अभी से आवाज़ भारी हो रही है, and I don't intend to like cry or anything like that. It feels like a personal loss. It's not a personal loss. मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई ना तो जानने वाले थे ना मेरी कोई कभी उनसे बात हुई, but it still feels like a personal loss. So let's go and just try to remember him in the greatness that he portrayed on screen. Inside I'm very emotional. Angrezi medium. Outside I'm very happy for my बिटिया. बस आतरी अंग्रेजी आ गया मैं. See how natural he is. See how real he is, यार. कितना रियल आदमी है ये. Into the jungle. And then Richard Parker, my fierce companion, the terrible one who kept me alive. This is from the Life of Pi. Forever from my life. What a beautiful movie that was. The old houses of Lunchbox तो यार. When I was a child are gone now. My old school too. Lunchbox तो यार क्या फिल्म थी यार. Some things are still the same. Yeah. The old post office is still there. Still there. And the hospital where I was born. Still there. And where my parents died. And my wife. So, we wired up. Mobile और भेजा. Some Dog में भी इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी यार. He became this bad cop type of character. बहुत अच्छी एक्टिंग की थी. और काफी complex in the audience. Why कुछ बंदा न सके? हाँ? Chip is not here. Not here. How good of an actor is he? कल्लू मामा कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं यार. बहुत अच्छे एक्टर हैं ये भी यार. ब्रिलियंट एक्टर ये भी. Wife is giving me hell. Guys, think about it. Why was Irfan Khan, the top choice for Hollywood filmmakers? जब भी उनको एक इंडियन बंदे की रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती थी, उनको इंडिया में पता, उनको इंडिया में मूवी बेचनी होगी, कोई इंडियन बंदा डालना होगा, वो इरफान खान को पकड़ते थे ज़्यादातर. क्यों? वो बंदा एक्टिंग को बहुत सीरियस लेता था, एक्टिंग को बहुत अच्छी तरह समझता था, एक्टर भी बहुत अच्छा था. एक्टिंग और हीरोइज्म दो अलग अलग चीज़ें हैं. टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छा हीरो है. इज ही अ ग्रेट एक्टर? नो. इज ही अ गुड एक्टर? या ही इज अ गुड एक्टर एक्चुअली, बट ही इज नॉट अ ग्रेट एक्टर. सेम गोज फॉर majority of Bollywood celebrities. Shah Rukh Khan is a good actor, but he's a bigger hero.
Salman Khan, not a good actor, great hero. Akshay Kumar, very bad actor, not very bad actor, good actor, even better hero. Sunil Shetty, very bad actor, very good hero. Sunny Deol, the worst actor in the world, the most awesome hero in the world. So you guys understand what I'm saying. This is my opinion, of course. मुझे नहीं पता, मुझे किसी director ना के नहीं बताया. But this is what I feel. They used to feel कि यार it's gonna be easier to work with him because he understands cinema the way it's supposed to, the way we see it. He sees it. He can relate. He can understand. He can do what we want him to do. That's what I feel like, you know, Hollywood producers used to see or look for in the actors, and that's what they found in Irfan Khan. Jurassic World कितनी बुरी फिल्म थी यार. He managed to do a good job in that movie as well. Look at that. Pan Singh Tomar. यार देखनी पड़ेगी ये फिल्म मुझे. कहाँ भगे चारों दत्ता? हमसे भग के चले जाए होगा. No, I'm not saying anything wrong. पीकू कितनी अच्छी फिल्म थी यार. इमोशनल ब्लैकमेल करके पेरेंट्स को पता नहीं क्या सुख मिलता है. बर्डन होते आप तो दिल्ली के अंदर बैठे होते हैं, कलकत्ता लेके नहीं जाती वो आपको. अरे थोड़ी देर आंख बंद करके शांति से सो जाइए. कुछ बातें कान के अंदर नहीं पड़ेगी तो प्रलय थोड़ी आ जाएगी. शक्ल चेक करो अमिताभ बच्चन की यार. Oh my god man. क्या यार, what a loss यार, what a loss to the arts. What a loss to the world of arts, man. What a loss to the world of movies. इतनी अच्छी मूवीज. मैं तो बचपन में सब छोटा था तो नहीं, तो मैं टीनेजर था, आरामी था उसमें बहुत. I used to smoke up and drink and all that kind of shit. And I watched this movie called Rogue मैंने देखी और मुझे इतना इम्प्रेस कर दिया उसने. उस मूवी में इतना इम्प्रेस कर दिया, मेरे दिमाग में वो आ गया ना, एक कूल डिटेक्टिव character, you know, he's accomplished, he's done things in life, but he's so depressed. He's seen everything in life, he's done everything in life. बहुत वो hard, you know, dark vibe जो आई थी, कितनी अच्छी अपनाई थी उसने उस कैरेक्टर में. रोग में वो डिटेक्टिव का जो रोल था उसने बहुत अच्छा अपनाया था यार. तब भाई मचा दी थी उस रोल में उसने यार. आई रियली वांट टू वॉच दैट सीन एज वेल. बहुत कम लोगों ने वो सीन देखा है. मैंने अपनी कम्युनिटी में भी डाला तो सिर्फ 200 लाइक्स आए उस पोस्ट पे. लाना था तुम लोगों पे यार. थोड़ा सा प्यार दिखाते उस सीन को. चला गया यार इस दुनिया से वो बंदा. आई रियली वांट टू वॉच दैट सीन एज वेल. सो लेट्स गो एंड वॉच दैट सीन एज वेल. उस सीन के फिर एंड में शुरू होता है वो गाना, मैंने दिल से कहा ढूंढ ला. तो लेट्स गो एंड वॉच दैट सीन गाइस. दिस इज द ओपनिंग ऑफ द मूवी रोग. इट्स नॉट द बेस्ट मूवी इन द वर्ल्ड बट इरफान खान कैरीड. पिछले गुरुवार को मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की. कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है. मन ऊब गया है. वही शोर, आवाजें. डिलीवरी देख रहे हैं आप? हिज बॉडी लैंग्वेज गोइंग लाइक, फिर नहीं कहना, फिर लेकिन कहना भी है तो कह देता है. फिर ये these things, इसकी आंखें तो मैं, don't even get me started on his eyes man. What he did from his eyes. एक भाई की आंखें थी और एक अजय देवगन की आंखें. Oh my god man. घर थाना. And listen to me man, this is my process bro. I don't cry that often. मेरा प्रोसेस ये है, मैं हंस के गुजारता हूँ अपने दर्द को. मेरा प्रोसेस ये है, मेरा अपना मेंटल प्रोसेस है ये. मैं अगर गम में होता हूँ तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं गम में होके रोऊं. दैट विल ओनली एम्पलीफाई माई गम. सो मैं उसको काउंटर करता हूँ विद हंसी. दिस इज माई मोस्ट ऑकवर्ड सिचुएशन आई मीन. आई ट्राई टू गेट आउट ऑफ इट बाई लाफिंग. सो दैट्स माई वे ऑफ प्रोसेसिंग इट. डोंट थिंक कि मैं किसी अलग वजह से हंस रहा हूँ. वही शोर, आवाजें. घर थाना घर थाना. मॉर्चरी, रंडी, बड़वे, लाशें. आए दिन अपने कमीज से खून के धब्बों को धोना. शिकायत नहीं है. अब पुलिस की नौकरी की है तो उतना तो होगा ही. होगा. Look at him यार. अजीब सा एहसास है मन में, अजीब. जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ. दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है.
मुझे लगा भाई ये जो ये सीन जब चल रहा था ना, मुझे अच्छी तरह याद है, क्रिस्टल क्लियर। मैं अपने कज़न के साथ बैठा था उसके घर में, उसके रूम में, और हम लोग उस वक्त जो है डोडा बना के पीते थे। तो आई रिमेंबर मैं सिगरेट भर रहा था जब ये सीन चल रहा था, और जब इसने बोलना शुरू किया, एंड बाय द टाइम दिस सीन यहाँ तक पहुँचे, मेरी आंखें जो है ना वो नीचे से यूँ ऊपर आ गई थी, एंड आई स्टॉप रोलिंग माई जॉइंट एंड आई जस्ट केप्ट वॉचिंग द सीन, क्योंकि इतना मेस्मराइजिंग, इसकी आवाज़ में इतना वो था, आई डिडंट हैव टू लुक एट इट। दिस इज वाई दिस सीन लेफ्ट अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन मी, कि उसकी आवाज़ सुन के मैंने कहा ये हो क्या रहा है भाई, ये देखने लायक कुछ हो रहा है मेरे ख्याल से। बहुत ड्रामेटिक सीन चल रहा है, रिलेटेबल सीन चल रहा है बड़ा एक तरह से। लेट्स गो एंड लेट्स पे माई अटेंशन टू दैट। तो आई फॉरगॉट टू रोल माई जॉइंट एंड देन आई जस्ट गॉट लॉस्ट इन द सीन। जिंदगी गाड़ी चल रही है, इसकी मैं चेन खींचता हूँ और मैं उतर जाता हूँ। तो किया क्यों नहीं? 3 बजे बहुत आला होने वाला है। पहली जब पिस्तौल हमें मिलती है, इसी गोली 45 रुपए की आती है, ये गोली सरकारी होती है। मैंने कहा यार अपना सुकून खरीदने के लिए मैं सारा पब्लिक का पैसा क्यों वेस्ट करूं। दूसरी, मेरा स्टैंड है मुन्ना, उससे कुछ रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, नेक्स्ट डे होली थी। मैंने सोचा मर जाऊंगा तो इसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी, जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ, और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने सोचा यार इसको देखते देखते तो नहीं मरा जा सकता है। मैं उठा खिड़की बंद करने के लिए, खिड़की बंद की मैंने, वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो टूट गया। उसके बाद मेरा मरने का दिल नहीं किया। What a brilliant performance यार। अच्छी राइटिंग है बहुत, सीन राइटिंग बहुत अच्छी है, डायलॉग राइटिंग बहुत अच्छी है। बट लुक एट हाउ ही इज, यू थिंक जो साइकोलॉजिस्ट जो बना हुआ है, साइकेट्रिस्ट जो बना हुआ है बंदा, यू थिंक he's acting right now? No, he's जो उसकी हंसी थी, that was so genuine because the scene was made so genuine by him. Wow यार, wow। किसी को जिंदगी कहते हैं मेरे भाई, किसी को जिंदगी कहते हैं मेरे भाई। इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। जो बात है यार। अच्छा ये बताओ, ये वो टाइम था जब हम सोचते थे सब, मुझे पता है सब 15-14 साल की उम्र में, मे बी अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड बच्चे जिस तरह मेरे जैसे, सब ये सोचते थे कि यार मैं तो जल्दी निकल जाऊंगा दुनिया से, मेरा कोई काम थोड़ी, मैं थोड़ी 60 ईयर ओल्ड 70 ईयर ओल्ड इन बुड्ढों की तरह करता फिरूंगा, मैं तो 40 की उम्र में निकल जाऊंगा, आपका भाई चला जाएगा जल्दी, डाई यंग, फक या रॉक स्टार्स, डाई यंग। तो ये लाइन जब किसी ने इसने बोली ना डॉक्टर ने, कि ज़िंदगी इतनी आसानी से जाननी छोड़ती, बहुत, इट रियली हेल्प मी ग्रो अप दैट डे, रियली गिव मी अ लिटिल बिट ऑफ अ चेक कि think about it, life is short but it's also very very long, think about it। नींद तो आती है ठीक से? अबे भाई नहीं आ रही। और ये वो मोमेंट है जहाँ मैं पिघल गया था, ये वो मोमेंट था जहाँ मैं इरफान भाई का नंबर 1 फ़ैन हो गया था। यहाँ मैं इरफान भाई का इतना बड़ा फ़ैन हो गया था कि यार क्या, कैसे डिलीवर कर दिया आपने ये लाइन, कैसे आपने मेरे दिल को छू लिया इरफान भाई, आपको पता भी नहीं है। कितने दिन से नहीं सोए हो? You'll never know। 4-5 दिन से, 4-5 दिन। आखिरी बार ठीक से कब सोए थे? कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था, माँ की गोद में सर रख के लेटा था, वहां आई थी नींद, बहुत गहरी नींद आई थी, और मैं सोता रहा घंटों। नींद तो माँ की गोद में आती है डॉक्टर साहब। एनीवे, मैं तुम्हारी गोलियां बदल देता हूँ, शायद इससे कुछ नींद आए। इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो we might have to try some radical treatment। रेडिकल शॉक देंगे, शॉक। ओके। मैंने दिल Yeah guys, that was my favorite scene of any movie by Irfan Khan।
I'm just gonna let the song play. I like the song. I enjoy it. Maybe I'll get a copyright strike. Maybe I don't. Who gives a fuck, man? Life is too short to worry about these things. कब सोया था? पिछली बार जब अपने गांव गया था, माँ की नहीं यार, दोबारा नहीं देख सकता मैं इसी. मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ आया गम तो ये गम ही सही. मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ आया गम तो ये. एक और मूवीज की बहुत अच्छी थी यार, जो मुझे बहुत एंजॉय किया था मैंने. एक सेकंड यार, आई गॉट गो वॉच माय फेस. देयर इज मेनी अदर रोल्स दैट ही डिड. एक मूवी थी, चरस नाम था उसका, पता नहीं क्या नाम था, ऐसी कुछ नाम था. सही अच्छी मूवी थी, बुरी मूवी नहीं थी, बस टाइम पास मूवी थी. उसमें भी इसका रोल बहुत अच्छा था. इवन दो इट वाजंट लाइक टू सीरियस, बट इट वाज जस्ट फन टू वॉच बिकॉज इरफान खान मेड इट फन टू वॉच. He was such a good actor यार. What a relatable actor he was. And I'm sure now you guys understand what I meant when I said कि मैं बस I was not in the mood to address this. ऐसा फील हो रहा था मुझे जैसे मेरा अपना पर्सनल लॉस है, और मुझे आज भी फील हो रहा है ऐसा. It's been 5 days, 6 days and I'm still feeling that. And I don't know where that feeling is coming from. It's not because he's, you know, उसका नाम इरफान है या वो मुसलमान है. बहुत सारे मुसलमान रोज़ मरते हैं, मैं नहीं रोता उनके लिए. बहुत सारे फेमस मुसलमान भी रोज़ मरते हैं. I don't give a shit about them. So I don't know. I still don't know why I feel the way I feel about Irfan Khan, and why it makes me so sad to know that he's no more. But it does make me so sad. It makes me really, really sad, and I laugh it off. That's the best we can do as human beings. When you miss somebody, when you feel the hurt of somebody leaving the earth, you should laugh about it. उसको हंसो, उस पर मुस्कुराओ, क्योंकि उससे आपने मिलना है आगे जाके. एक ना एक दिन, you know, everybody is gonna end up, you know, in the same place. So just think of that and be happy in your life. Try to bring more happiness and try to smile more. Yeah guys, so that was me reacting to our favorite actor of all times, Mr. Irfan Khan. Rest in peace. Allah आपकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह आपको अच्छा दर्जा नसीब करे ज़िंदगी में, आफ्टर लाइफ में. एंड यू नो, जो भी आपका बिलीव था उसी हिसाब से. एंड या, सी यू सून सर. Not soon enough, but one day, inshallah. Take really good care, guys. I love you all. Shabba khair.